जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मलिक नासिर महमूद इस वक्त बुखारेस्ट में हूँ और मेरे साथ इंडिया से हमारे भाई हैं, पंजाब से हरदीप सिंह। अस्सलाम वालेकुम। और 2 साल से यहाँ पे ये रह रहे हैं। मैं चाह रहा था कि इनका एक्सपीरियंस शेयर करूँ, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कंपनी में काम भी किया। उसके बाद फिर अभी इनका इरादा है यहाँ पे ये रेस्टोरेंट बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम इनकी रेस्टोरेंट की वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू। ये हमने इरादा किया है कि क्योंकि लोग जो इंक्वायरीज़ करते हैं यहाँ पे आने वाले, तो जो यहाँ पे रियल चीज़ें चल रही हैं, जो हालात चल रहे हैं, तो वो आप लोगों को मुख्तलिफ़ लोगों के जो एक्सपीरियंस हैं तो उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो आज हम इनका तफसील से इंटरव्यू करेंगे और मैं सबसे पहले तो चाहूँगा कि हरदीप सिंह जी अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी हरदीप साहब, अपनी एज और थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दें अपना। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी ਸਾਰੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ इधर हो जाओ थोड़ा। ਫੈਨ ਆ ਤੇ YouTube ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਘਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਹਰਦੀਪ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ए ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਾਰਾ ਦੇ ਨੌਰਥ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੀ ਤੇ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਕਲੂਜ ਨਪੋਕਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਟੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਦੂਰ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਹੈ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਰਡਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰ ਜੌਬ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਐਜ਼ ਏ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਲੂਜ ਨਪੋਕਾ ਸਿਟੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰ ਤੇ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਓਨਰ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਬੀ 20 ਸਮਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੀ 2019 ਚ, ਨਵੰਬਰ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 2019 ਚ। 2019 ਦੇ। ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਰਰ ਹੋਈ ਸੀ ਟੋਟਲ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਜੀ $700 ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਔਰ $700 ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ? ਜੀ, ਖਾਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਔਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸੀ? 20 ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ 20 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੰਮ ਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਫੜਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਰੋਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਿਊ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਜੀ ਰੋਮਾਨੀ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਮਿਸ਼ਵਾਰਾ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਹੈ ਕਲੁਜ, ਮਲਦੋਵਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਕਲੁਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫੋਕਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਮੇਨ ਹੱਬ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਔਰ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਨਗਨ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੋਈਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਨਵੀਅਤ ਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ।
ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ। ਰੋਡ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਗਨ रोड स्ट्रक्चर भी बेहतर कर रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਗਨ ਚ ਮੂਵ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਡਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਓ। ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਵੀ, ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਥੋੜਾ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਥੇ ਹੈਵੀ ਆ ਕੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਔਰ ਬੈਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੀ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। तो वो होर किस तो इंडिया वाले नहीं अपॉर्चुनिटी? वो सिर्फ और अच्छा सिर्फ ये मैं एक आप लोगों को इधर बता दूं कि एक तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पंजाबी भाई हैं और ये पंजाबी में ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो है ना माजरत के साथ उन लोगों को जिनको समझ नहीं आ रही, लेकिन आई होप कि आप लोग जो है ना वो काफ़ी बातें समझ गए होंगे। मैं ये यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पाकिस्तान का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, तो उसमें आप लोगों को लाइसेंस भी यहाँ पे चेंज हो जाता है, जो कि थ्रू आउट यूरोप में चलता है, बाकी इंडिया का या दूसरे कंट्रीज़ का ये नहीं है। और मैं सही बात मेरे को बहुत खुशी होती है कि आपकी गवर्नमेंट ने बंदे देने से पहले इनके साथ एग्रीमेंट किया कि हमारे बंदों के लाइसेंस चेंज होने चाहिए, जो बहुत ही इजी प्रोसेस के साथ होता है और बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे बंदों के लिए। हाँ, ये भी एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें कुछ बातें जो है वो समझ नहीं आती, लेकिन एक्सपीरियंस से या दूसरे लोग जब काम कर रहे होते हैं तो उन्हें ये चीज़ पता चलती है कि जो हमारा जो इनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जुल्फ़ी बुखारी साहब से और इनकी हुकूमत से, गवर्नमेंट, तो उन्होंने इनको बाकायदा जो है ना ये कहा था कि आप टेक्निकल या जो फैसिलिटीज़ जो है ना हमें दे सकते हैं, सर्टिफिकेशन जो चेंज होगी तो वो भी दें। तो उसमें फिर इन्होंने ये लाइसेंस वगैरह या दूसरी चीज़ें जो है ना सर्टिफिकेशन, तो वो इक्वलिटी जो है ना तो वो इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। तो उसके बाद जो है ना अब ये कॉन्ट्रैक्ट पे बंदे कितने आते हैं या किस हिसाब से, तो दूसरा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर वो वीज़े भी दे रहे हैं, लेकिन बशर्ते कि यहाँ से जो है वो फेयरली वीज़ा आपका निकल आए, वर्क परमिट निकल आए, क्योंकि यहाँ पे ये तो इशू चल रहे हैं, ज़ाहिर एजेंसी के थ्रू ये काम हो रहा है। अच्छा, उस तो बाद मेरा एक सवाल है थोड़े, सॉरी मैं फिर जो है ना उर्दू में मैं बात कर रहा हूँ, उर्दू में करेंगे क्योंकि मुझे ये पहले बंदों ने काफ़ी गिला किया है, तो उर्दू सारी समझते हैं। उर्दू में आपको थोड़ी प्रॉब्लम अगर हो तो कोई मसला नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वीडियो लंबी हो जाएगी फिर कोई मसला नहीं है, इसको मैं फिर जो अहम चीज़ें वो कर लेंगे। अच्छा, मैं अभी एक और इधर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जॉब्स मतलब किस तादाद में, कितनी जॉब्स हैं, मतलब क्या उसमें लगातार बंदे आ सकते हैं या कि सीधा थोड़ी जॉब्स हैं? मतलब नहीं, ऐसी बात नहीं है, जॉब्स बहुत है। सिर्फ यहाँ पे 3 महीने जॉब्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम चलती है, जैसे इस सीज़न में, क्योंकि बर्फबारी होती है और छुट्टियां ज़्यादा होती है, जिस वजह से ओनर्स हायर करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 1 महीना छुट्टियां रहती हैं, ये न्यू ईयर की और क्रिसमस की, और थोड़ी बर्फबारी होती है, बाहर के काम के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। अदरवाइज बहुत अपॉर्चुनिटी है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है जी रोमानिया में। अच्छा, अनलिमिटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। और ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में है या कौन मतलब शोबे कौन कौन से हैं, मुझे ज़रा ये भी बता दें। सॉरी, कौन कौन से इसमें डिपार्टमेंट हैं, किस किस जगह पे जो है ना, मतलब कौन कौन सी जगह पे जॉब मिल सकती है? देखो, मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है कंपनी के पास कौन सा काम है। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है तो उनको मान लो 100 बंदे चाहिए, 100 बंदा चाहिए, तो वो उसके हिसाब से अपना डिवाइड करते हैं कि 10 कारपेंटर, 10 स्टील फिक्सर, इलेक्ट्रिशियन, ऐसे डिवाइड, यानी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जॉब्स है। बाकी हेल्पर, अगर कोई बंदा हेल्पर है तो उसके लिए जैसे वेयर हाउस बने हैं जहाँ पे मटेरियल आता है, लोडिंग अनलोडिंग है, सो ऐसी बहुत सी तादाद में जॉब है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी। और सेकंड ये भी है कि, और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मुझे लगी गल्फ से, और यहाँ पे अभी गल्फ में भी वो रूल्स हो गए हैं इस नए साल में, कि अगर आप अपने ओनर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको अथॉरिटी है कि आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हो, आपको एग्जिट होने की ज़रूरत नहीं है कंट्री में। ठीक है जी। पर मैंने तो सुना था एक लॉयर, शायद वो झूठ बोल रहा था, कि वो कह रहा था कि ये इस पे पाबंदी लगा रहे हैं कि आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं, एक्चुअली मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली क्या दिक्कत हो रही है कि हमारे बंदे भी कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, जहाँ पे उनको भी थोड़ा सा सही होने की ज़रूरत है। और
इवन देन कंपनियों को भी। वो ये बात है कि जैसे बंदे डॉक्यूमेंट लेते हैं, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो 2-3 महीने बाद में वो अपनी कंपनी चेंज करने के लिए बिना नोटिस दिए हुए लेफ्ट हो जाते हैं कंपनी से। वो नो डाउट कंपनी चेंज कर सकते हैं, पर उसमें मालिक को लॉस क्या होता है कि वो उसके डॉक्यूमेंट के लिए कुछ टैक्सेस भरते हैं या कुछ भी उसकी फीस भरते हैं और बंदे बिना बताए चले जाते हैं, उसमें कंपनी को लॉस होता है। तो यही बात के लिए कुछ कंपनियां रूल्स वगैरह बोल रही है कि गवर्नमेंट को कि चेंज करें, क्योंकि बंदे भी भाग रहे हैं। हाँ, भाग जाते हैं, वो कंपनी को प्रॉब्लम होती है। और इवन देन कि बंदे यहाँ पे आपको पता है कि बॉर्डर क्रॉसिंग के चक्कर देखें, में ये उन तमाम लोगों के लिए जो नए आते हैं ना, तो एक नसीहत के तौर पे इसको लें कि बाकी देखें, आप लोगों का सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपनी जेब भरनी है या अपना काम निकालना है, दूसरे जो आने वाले लोग हैं, ताकि उन लोगों का भी भला हो। आप लोग यहाँ पे जिस भी कंपनी में जाते हैं वहाँ पे 6 महीने साल जो है ना अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें और उसके बाद सब्र से काम लें। अल्लाह ताला उससे बेहतर रास्ते आपके लिए खोल देगा। ये नहीं है कि भाग के या तो आप भाग जाएं यूरोप में किसी और जगह पे इलीगल, वहाँ लोग सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं जी वहाँ पे आपको बहुत कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलीगल होंगे तो 10 साल जलील होंगे, 1 साल टिक के कम पैसों पर भी काम करेंगे तो ज़िंदगी बन जाएगी। आगे आपको कई रास्ते नज़र आएंगे, जैसे ये भाई अभी तो यहाँ पे जाके आपने जर्मनी या किसी मुल्क में मजदूरी करनी है तो यहाँ पे ये अपना बिजनेस कर रहे हैं अभी यहाँ पे, तो वो बेहतर है। अपना ये इन्होंने बेहतरीन फ्लैट यहाँ पे लिया हुआ है और अभी ये यहाँ पे काम भी करते रहे साथ, इनको और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आ गई हैं समझ, तो अब ये काम अपना करेंगे यहाँ पे बेहतरीन। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितने बंदे पैसे पाकिस्तान से लगा के आगे मूव होने के लिए लगा रहे हैं, उतने में यहाँ पे आपको पता है बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हाँ, इतने में आप यहाँ दुकान बनाएं, कोई मतलब किसी तरह का वो रेस्टोरेंट कुछ छोटा मोटा या कुछ भी आप यहाँ पे वो करके और इज्जत से यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो अभी हम इस पे एक वीडियो जो है ना दूसरी मैं बनाऊंगा कि जो काम के सिलसिले में है वो इंशाल्लाह जो है ना जो भी हम जितना हो सके तो आपको मैक्सिमम बताएंगे। अच्छा, अभी हम क्योंकि इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो वो हम बात जो है ना जारी रखते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जो कंपनियां हैं वो क्या आदमियों के साथ सलूक करती हैं, मैक्सिमम जो कंपनी ओवरऑल इनका क्या रवैया है, पैसे वगैरह का लेन देन और ये सारे मामलात, खाना पीना, यहाँ पे रिहाइश, वो क्या चक्कर होता है मतलब? देखो, ऑलमोस्ट अभी कंपनियां समझ गई हैं कि जो एशियन बंदे हैं वो खाना हमारा लाइक नहीं करते, क्योंकि यूरोपियन फूड आपको पता है वो तो बिल्कुल तो कंपनियां ज़्यादातर उनको 100 या 150 या $200 सैलरी से अलग से दे रही है और उनको किचन प्रोवाइड करती है, अच्छी अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, ताकि जो बंदे खुद बनाए और खा सके। अगर उसमें भी वो सेटिस्फाइड नहीं है कि हम नहीं बना सकते, तो कंपनी, जैसे मैंने अभी रेस्टोरेंट शुरू किया तो हमारे जैसे बंदों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो हम टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैं अभी नहीं कर रहा, मतलब और रेस्टोरेंट्स वगैरह कर रहे हैं। तो और सैलरी वगैरह जो अकॉर्डिंग लॉ है वो 2 वीक है, पर अगर मालिक चाहे महीने में भी दे सकता है, मालिक चाहे तो 15 दिन 15, जो रूल्स के अकॉर्डिंग है। हर 2 हफ्ते बाद में आपका सैलरी है 50-50, 40% पहले और मेरे ख्याल में 60% बाद में। अच्छा, अभी हम बात करते हैं जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग अब वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान में स्पेशली जो है ना कि कैसे जॉब जो है ना वो लें, किस तरीके से, कौन सा ऑथेंटिक यहाँ पे ऐसा कोई जो कंसल्टेंट है, एजेंसी है, या किस तरीके से मतलब उनको एक ऑथेंटिसिटी हो, कैसे करें मतलब? देखो, डायरेक्टली तो यहाँ से सर जी कोई भी बंदा जॉब नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ रूल्स है। अगर कंपनी को बंदा चाहिए तो कंपनी एक एजेंसी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी जो रोमानिया की है, ठीक है। और जो रोमानिया की एजेंसी है वो, जैसे आप वो पाकिस्तान में आपकी एजेंसी है, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके ही बंदा ले सकती है। डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी कंपनी हायर नहीं करती बंदा, वो थ्रू ऑफ एजेंसी ही होगा। थ्रू एजेंसी होगा जी, थ्रू ऑफ एजेंसी होगा। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? देखो जी, मेरा पाकिस्तान ਲਈ ਤੇ मैं यही कह रहा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान ਲਈ, क्योंकि देखो ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਨਲੀਗਲ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਲਈ,
ਮੈਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋर्ट ਲੈ ਸਕਦੇ हो रोमानिया अब ये मैं इधर आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो आदमी भी यहाँ से गायब होके जाता है आगे डंकी मार के, उसका अशर क्या होता है, वो यहाँ वहाँ पे जलीलो ख्वार हो के, चाहे वो पुर्तगाल भी चला जाए तो वहाँ इलीगल रह के साल 2 साल 3 साल टैक्स भरेगा, पेपर बनेंगे और उसके फिर 5 साल या 7 साल के बाद उसको कोई चांस बनता है कि वो परमानेंट हो जाए। जी जी, तो सैलरी भी वहाँ पे इससे भी कम है वहाँ इससे पे। भी कम है। तो वाई नॉट कि आप एक लीगल यहाँ पे रह रहे हैं, इज्जत से रहें यहाँ पे, इज्जत से रहें। और 5 साल आप काम करते रहें, आपको पीआर मिल जाए यहाँ पे, मिल जाए, और पीआर मिलने के बाद थ्रू आउट आप यूरोप में किसी भी जगह पे जाके कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वही जलालत जो आपने 10 साल उधर जाके जलील होना है कम पैसों में, वो आप इधर आराम से काम करें। सेकंड और चीज मेंशन करता है, मान लीजिए आपका फोकस है आपने जाना ही है, तो उसका एक लीगल वे है। अगर आपका बॉस आपके साथ एग्री है तो वो एक एनओसी पेपर बना के देगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 20 डेज की लीव पे जा रहा है जर्मन या कहीं भी, तो वो उसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट लगाओ, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाओ। जब आपका बॉस आपको परमिशन दे रहा है एनओसी, तो लीगली आपको वीज़े की परमिशन मिलेगी शेंगन की, ठीक है जी। अच्छा, अभी आखिर में मुझे ये बता दें कि कितने यहाँ सैलरी रेशो क्या है, मतलब कितनी सैलरी जो है ना मिनिमम और मैक्सिमम कितनी मिल रही है? देखो जी, जो कंस्ट्रक्शन में ऑलमोस्ट सैलरी जो $700-800 समथिंग मिलती है। अच्छा। बाकी अगर कंपनी ओवर टाइम वगैरह दे, कुछ अच्छी कंपनियां, तो उसमें एक्स्ट्रा भी मिल जाता है, ठीक है जी। और उसमें ये भी है जैसे सैटरडे संडे ऑफ है अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर कंपनी कोई कंपनीज सैटरडे काम करवाती है तो वो एक्स्ट्रा भी देते हैं। हरदीप साहब, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, यू आर वेरी फ्रेंडली पर्सन, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल के। इंशाल्लाह फिर आते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।